Good evening, friends. Welcome to Roaring Cycle Spotlight. I hope all of you are doing well. Tomorrow is Sunday. Is anyone riding anywhere, or what is your plan for tomorrow? Do let me know. And also, tomorrow being Sunday, we have this safety session at 5 p.m. through Let's Ride ID. So please, through Zoom in. The details can be found on Let's Ride and also on Roaring Cycles. Please do join the session. It's one of the best ones that you can avail for free. So yeah, Zoom in tomorrow and listen to the safety sessions. Hey, hi Lalit, good evening. Good evening Devendra, thanks for joining. Are you guys doing something good tomorrow? Tomorrow Sunday है, कोई राइड वाइड पे जा रहा है कि क्या कर रहा है? ज़रूर बताना मुझे. I'm not sure about mine, but I am here. Yeah, Saturday night. आजकल कुछ सैटरडे नाइट भी नहीं हो रहा है. नो वन गोज़ आउट लाइक पार्टिंग. पहले जाते थे, पहले काफ़ी मज़ा करते थे, बट नाउ इट्स लाइक अ थिंग ऑफ द पास्ट. बट मे बी घर पे काफ़ी मज़ा कर सकते हैं हम लोग. एंड सो यस, इफ़ यू आर एंजॉइंग एट होम, डू लेट मी. Oh wow, Panchgani, क्या I am sure the weather is awesome over there, Devendra. Beautiful, and rains में तो काफ़ी मस्त होता है वहाँ पे. You know the I mean, मैं जब भी गई हूँ, I have had been through the fog and then the clear sky and rains with lush greenery out there. Beautiful लगता है, especially the tabletop. वहाँ से जो नज़ारा दिखता है, wow, that's simply amazing. देवेंद्र, तुम वहाँ गए हो तो you should get strawberries for me. I know it's not the season for strawberries, but I'm just saying, just joking. Yeah, do share your rides with us. I mean, अगर तुम राइड पे गए हो तो राइड, otherwise other pics around that place. Pratapgarh, I love that fort. Pratapgarh, it's amazing. बहुत अच्छा लगता है. And then there is that वहाँ पे एक शिव का टेम्पल है जहाँ पे से वो नंदी के मुंह से पानी निकलता रहता है. सो या, इफ़ यू गेट द टाइम, डू गो एंड विजिट दैट प्लेस. So have you gone alone, or is it you're gone with your family or with your friends, or what? We are just waiting for our guests to join in as well. So oh, nice. And did you go riding out there, or just in a I mean, did you go riding, or did you go in a car or something? We have a guest over here in the meanwhile, and I've added him on, so just waiting for him to accept the morning. Hey, hi Kiran. Hi Shilpa, how are you? I'm good. How are you? I'm doing good. Thanks for joining. थोड़ा सा smile कर लो. Don't be so nervous. You can smile. You can be yourself. Yes, वो नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ना टीचर के सामने स्टूडेंट खड़ा है. ऐसा कुछ नहीं है. So this is my first time on Instagram live, so I'm little bit nervous. Don't be nervous. Just give a smile, and all your nervousness will go off. I'm sure. I was just talking to Devendra, who's in the audience, and ऐसे ही पूछ रही थी कि कहाँ गए थे करके. So I'm sure if you, I mean, I'm not sure if you know him. No. Devendra Sabral. So yeah, anyways. So yes, thanks for joining Roaring Cycle Spotlight. I am happy that you joined at such a short notice, and you were willing to come on an interview with us. I think this is your first interview ever. Yes. Cool. Yes. So all the best to you. बहुत सारा क्वेश्चन से बम्बार्ड करेंगे हम अब. अरे बाप रे. Just kidding. Feel at ऐसे ही समझो कि बस दोस्त से बात कर रहे हैं, and you should be fine. So without wasting much time, let's start. Okay.
टिपिकल एचआर क्वेश्चन, आप कॉर्पोरेट में काम करते हो राइट? यस। तो एचआर क्वेश्चन क्या होता है सबसे पहले? Introduce yourself and all like that. Correct. So tell us something about yourself. Yeah, so my name is Kiran Sawant. People call me Maddie as well. Mhm. I am a commerce graduate and working with as a business and intelligence department in Mhm. a medical billing corporate Mhm. In Thane. Okay. And are you? I live with my joint family. My mom, Mhm. my elder Mhm. brother, my wife, and one little angel. Oh, nice. So sweet. So sweet. I love those little angels. They are always so cute and itna pak 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 pak. Yes. I don't know. She is now 13 months. Oh, फिर तो बहुत ही She, मजा आता she, होगा. she is a lockdown girl and actually. तो घर पे ही पूरा धमाल होता रहेगा. हाँ, घर पे ही पूरा. एक्चुअली अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है Mhm. तो आई आई नो मीन्स कि मुझे पूरा एक्टिविटी पता चल गया मीन्स बच्चे कैसे बड़े होते हैं जैसे कि मैं बड़ा हुआ अच्छा. आप बड़े हुए. तो मदर को ये सब पता रहता है कि अभी वो बात करेगी अभी चलेगी या अभी क्रॉलिंग करने वाली है अभी वो स्टैंड स्टैंड खड़े रहने के लिए वो ट्राई कर रही है तो वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो मैंने देखी है मेरे सामने यानी मेरा लॉकडाउन का जो पीरियड है वो अच्छा गया है. Awesome, सो awesome. सो I mean, आई you're स्टे. lucky to see a baby हाँ. grow in front of you. मतलब every second, every minute, मतलब every changes जो infant का होता है, it's amazing to see that. Yes, yes. And one more thing, yes, you are correct. I am from Mumbai, Dream City, Mumbai. Mhm. Oh, nice, nice, awesome. So, Kiran, how did you get on to this biking? क्या inspiration था या motivation था या मस्ती कौन सी थी जिसकी वजह से आप बाइक पे चढ़ गए? एक्चुअली मस्ती वगैरह वैसे कुछ बोल नहीं सकते बट हाँ कि मैंने स्टार्ट किया था 2002 से क्योंकि हम्म. मेरा लाइसेंस तो तभी मैंने 2002 में मेरा आया था पक्का लाइसेंस. हम्म. अ, तभी तो हैंड गियर वाले स्कूटर्स रहते थे तो मेरे मामा जी ने हम्म. मुझे स्कूटर दी थी. तो मैं हम्म. स्कूटर से ही मैं जॉब मेरा फर्स्ट जॉब तभी लगा था मेरा ग्रेजुएशन वगैरह हुआ था और मैं तभी हाँ. 2002 से फिर राइडिंग स्टार्ट किया था मीन्स एज अ लोकल राइडर मीन्स नॉट अ राइडर लाइक मीन्स हम्म. एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या कहीं आप लॉन्ग टूर के लिए निकल रहे हो अकेले वैसे कुछ नहीं था. जस्ट लर्निंग पर्पज मुझे एक स्कूटर मिला था वो भी हम्म. 1980s का था. तो ओके. वो अभी तक रखा है अभी तक स्कूटर ओ है. नाइस. हाँ बट नॉट इन बजाज. रनिंग कंडीशन ना. यस बजाज प्रिया है. ओ प्रिया. ओके. ये बजाज प्रिया 1980 का मॉडल है तो अभी भी है हमारे पास मेरे सामने रखा है उसे. सो वो एक क्रेजी था मीन्स अलग क्रेज था मीन्स हाथ में गियर रहते हैं एक हाथ में ब्रेक रहता है एक ही पैर से आपको पीछे का ब्रेक मिल लगाना रहता है बट आगे का ब्रेक तो कभी करेक्ट. लगता ही नहीं उसके अंदर. हाँ और वो ऐसा मशीन है कि मीन्स एक बार छूट गया फंस गए हाथ से लेफ्ट हैंड से आपका 2 उंगली से क्लच छूट गया तो समझ जाना कि आप कहीं जाके फंस कहीं गए ना कहीं गाड़ी लेके. ठोकने वाले हो. हाँ ठोकने वाले वैसा. तो मेरा लर्निंग हुआ है उसी पे बजाज से मैंने स्टार्ट किया था हम्म. चेतक प्रिया. उसके बाद में एक्टिवा मुझे मिला था एक्टिवा से भी मेरा बहुत सारा ऑफिस वगैरह भी जाता था. हम्म. उसके बाद मेरा वापस बजाज में मैं मूव हुआ 2004 में. डी टी एस है 150 पल्सर हम्म. हम्म. सिंगल स्पार्क प्लग वाली बाइक. फिर हाँ. उससे हम मेरे मामा जी के साथ ही मेरा राइड स्टार्ट हुआ था मेरा करियर वैसे अब चेक करेंगे तो मेरे मामा जी के साथ ही मीन्स हम लोग हर 2-3 महीने में शिरडी नासिक घूमने जाते थे शिरडी टेम्पल अच्छा. वगैरह तो हम लोग वो हम्म. पल्सर पे जाते थे. ओके. तो हम लोग ने वहाँ पे फिर वहाँ से पहले तो पिलियन ही था फिर हम्म. थोड़ा थोड़ा करके फिर मैंने ट्राई करके फिर मैं लॉन्ग राइड्स मैंने स्टार्ट की. ओके. ग्रेट.
तो लॉन्ग राइड्स में आपका सबसे पहला लॉन्ग राइड कहाँ का था? मेरा सबसे पहला लॉन्ग राइड था यहाँ से मुंबई टू शनि शिंगणापुर से शिरडी। मैंने इन इन द महाराष्ट्र में मैंने किया था वो। तभी मेरे पास बजाज पल्सर था, तब तक मैं मेरे पास आर ही नहीं था, मीन्स रॉयल इनफील्ड में यूज़ नहीं करता था। ओके। एक्चुअली रॉयल एनफील्ड के बाद ही मैं मीन्स थोड़ा मुझे मेरे दोस्त वगैरह बने बहुत सारे। और मैं हम्म। तभी से मेरा मीन्स स्टेट वाइज राइडिंग प्लस दोस्त बनाना, डे राइड वगैरह ये सब तभी से मेरा स्टार्ट हुआ। क्योंकि 2003 2004 में मीन्स मुझे खुद को पता नहीं था कि कहाँ से गियर्स खरीदते हैं। तो ओके। हाँ, तभी तो हाँ गियर्स तो के फंडे इतना नहीं था। हाँ तभी, हाँ इतना नहीं था। और तभी गियर्स खरीदने नहीं, ऐसा लगता था कि अरे ये कोई सुपर बाइक वाला जा रहा है, इसने कुछ पहना है पैर में, वैसा कुछ लेना है। बट वो स्टोर कहाँ है अपने को पता नहीं। हाँ तो तभी इतना गूगल वगैरह करके भी पता नहीं था, क्योंकि तभी इतना कुछ आइडिया ही नहीं था। करेक्ट। मीन्स इतना जमाना नहीं था कि दुकानें मीन्स लिस्टेड है गूगल में कि यहाँ पे ये स्टोर है, यहाँ से मिल सकता है। तो सब पब्लिक मुंबई के साइड ही जाता था, ग्रेटर मुंबई वगैरह, वहाँ से सब राइट। खरीदते थे। बट इतना अपने को क्रेज तभी हुआ नहीं था। तो मैं काम चलाने के लिए मैं क्या करता था, मैंने क्या किया था पता है? मैं एक साइकिल स्टोर में चला गया था। उधर मुझे वो हाँ एक स्केटिंग के जो बच्चे लोग ये यूज करते हैं ना, पैडिंग हाँ, पैड्स निगल। रहते हैं, पैर, हाँ हाँ। नी गार्ड वगैरह, तो वो छोटा सा रहता है, तो वो मैं तभी वो लगाता था मीन्स। अच्छा। तो यानी वाह। लॉन्ग राइड के लिए एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन में वो लगाता था। फिर उसके वाह। बाद 2-3 साल के बाद फिर पता चला कि हाँ ये चीज़ इतनी महंगी नहीं है, ये आप थोड़ा लोकल वाला भी आप ले लोगे तो आपको 700 800 1000 रुपये तक मिल जाएगी। हाँ, हम्म। सेफ्टी, बट सेफ्टी एज अ नॉर्म्स राइड के टाइम हेलमेट तो जरूर रहता था, शूज जरूर रहते थे। बट तभी इतना ये भी नॉलेज नहीं था कि स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनने हैं राइडिंग के टाइम। क्योंकि कभी भी हम्म। कुछ मिसअप हो गया या आप गाड़ी पे से गिर गए या कुछ हुआ तो आपके पहले स्पोर्ट्स शूज फटने वाले हैं। तो करेक्ट। फिर पतला पहले में सोल राइड निकल में जाएगा। तो हाँ, या पहले फट जाएगा और आपको लग सकता है ज़्यादा। उसके बाद पता करेक्ट। चला कि क्या चमड़े का जूता पहनना ज़रूरी है, तो तभी चमड़े के जूते लेने के लिए पैसे नहीं होते थे। तो हम लोग, मैंने और मेरे मामा जी ने एक राइड की थी ये देवलाली को, नासिक को। फिर हम्म। वहाँ पे से जाके हम लोग ने कुछ वहाँ पे आर्मी कैंप है, तो आर्मी आर्मी कैंप। कैंप से हम लोग, हाँ तो आर्मी कैंप के वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, तो वहाँ से पब्लिक बहुत सारा मीन्स स्टफ्स खरीदी करता है, तो मैंने वहाँ से जूते लिए थे। ओके। मैंने भी हाँ कुछ ऐसे ही किया था, लेकिन मैं यहाँ पे अपना कोलाबा में जो नेवी का कोलाबा कॉजवे के आगे जहाँ पे नेवी का पूरा ये है, वहाँ पे गई थी। वहाँ के कैंटीन से जूते उठा के लेके आई थी। बट इतना मतलब पता था कि लेदर शूज पहने तो अच्छा पड़ता है, क्योंकि हाँ, एक यानी कभी तो भी मैं कुछ खुद। गाड़ी से गिरेंगे या गाड़ी का कुछ भी मीन्स साइलेंसर के भी पीछे वगैरह पैर वगैरह आ गया तो आपको ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। मीन्स आपको जो करेक्ट। हीटिंग का इशू जो रहता है उससे वो जो जूता वगैरह जल जल जाएगा वो नहीं होगा। तो करेक्ट। ये सब से एंड सेफ्टी फैक्ट बाद में पता चले, थोड़ा थोड़ा लगने के बाद ईयर, पता चलता हाँ लगने के बाद ही। है। Thankfully, because I was in NCC, I knew about those boots and all. मेरे को पहले से फैसिनेशन था उस तरह के बूट्स पहनने के। तो जैसे ही मुझे मिला था मैंने खरीद लिया था, तो मैं वही राइडिंग के लिए वही यूज करती थी। हाँ, गियर्स वगैरह का फंडा मुझे पता चला 2012 13 से एक्चुअली। उसके बाद मैंने गियर्स लिए थे। दैट्स व्हेन आई वेंट टू लद्दाख का फर्स्ट टाइम, तो तभी मैं लेके चली थी। तब तक मुझे नहीं पता। बट हाँ, हेलमेट जरूर पहनती थी। थिक जैकेट, जीन्स, ग्लव्स, राइडिंग ग्लव्स नहीं, क्योंकि सादा ग्लव्स 2013 लेदर वाले। 2013 2014 से वो सब ये चालू हो गया था, आयरन बट, बाद में रॉयल राइडर्स, रॉयल अपना ये रॉयल इनफील्ड का जो मीटअप होता है गोवा में, राइडर मैनिया वगैरह, वो सब बूम में था वो टाइम। करेक्ट। आई मीन आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, बट हाँ, थोड़ा कुछ पता था, कुछ चालू है, ऐसा कुछ इवेंट होता है ये वो। अ, हाँ, पता था। एनीवेज,
सो यस, आपका फर्स्ट इतना बड़ा जो जो भी आपने लंबा राइड मारा यहाँ से शनि शिंगणापुर, वहां से नासिक एंड देन बैक एंड ऑल दैट, उसमें खास क्या था? समझा नहीं मैं एक्चुअली। मतलब टास्क। ने फर्स्ट नहीं, खास, हम्म। व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट दैट राइड? मतलब आप पहली बार इतना लंबे राइड पे गए, तो आप ओवर प्रिपेयर्ड थे, अंडर प्रिपेयर्ड थे, कि फिर हाउ नहीं, वाज इट? तभी चलता था कि तभी है ना हम लोग का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग का ऐसा था कि हर 3 महीने या 4 महीने में हम लोग शिरडी जाते थे, तभी मैं पिलियन जाता था। बट मेरे पास जब भी पल्सर आई तब हाँ, यानी तभी हमारा एक मीन्स मेरे मैं जहाँ पे रहता था मलाड में पहले मुंबई में, वहाँ का हमारा एक लोकल मीन्स गैंग, यानी बाइकर्स गैंग है सर। मीन्स वो लोग भी है ना हर साल में 2 बार जाते थे। तो ओके। मुझे चांस मिला तो मैंने उनको भी बोला चलो अपन, मेरे पास भी गाड़ी है। तो मेरा एक फ्रेंड था, तो वो मुझे हाँ। बोला चल कोई तेरे साथ नहीं आएगा तो मैं तेरे साथ आऊँगा, तू डर मत। तो हम्म। हम लोग ने साथ में, वो पिलियन था और मैंने स्टार्ट किया था। तो राइड अच्छा। वाज ओके मीन्स, राइड में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ मीन्स। ओके। लेकिन कुछ तो यादगार रहा होगा वो पर्टिकुलर राइड का। राइड में यादगार तो वही है कि फर्स्ट टाइम चलाने का जो क्रेज होता है मीन्स, कि एक 400 किलोमीटर या 300 किलोमीटर जो राइड हुई थी, वो हम लोग ने यहाँ से मुंबई से स्टार्ट किया। टिटवाला रुके, टिटवाला गणपति दर्शन किए। फिर वहाँ से हम लोग आगे शनि शिंगणापुर अहमदनगर रोड से, फिर वहाँ से शिरडी गए। शिरडी एक दिन का हॉल्ट लिया, थोड़ा एंजॉय किया। फिर नेक्स्ट डे वापस नासिक होते हुए हम लोग मुंबई आ गए थे। मीन्स एक सर्कल पूरा किया था मीन्स। हम्म। और इट्स वेरी इंजॉयबल मीन्स, जो मेरे पीछे जो बंदा बैठा था वो भी मुझे बोल रहा था कि अरे भाई थोड़ा 80 के ऊपर जा मत, अभी अभी तो नया है या ऐसा है, क्योंकि तभी कसारा गाड़ी भी जब ये सिंगल पट्टी था, तभी दो हाँ, साइडेड नहीं था। करेक्ट। हाँ। हाँ, तो तभी वो बंदा बोल रहा था अभी ज़्यादा राइट में मत जा, लेफ्ट में रख गाड़ी, टर्निंग के टाइम स्लो कर। वो मुझे गाइडेंस कर रहा था, बट मैं भी उसको ओवरलुक नहीं किया। वो बता रहा है, वो हम्म। सही बता रहा है, ये समझ के मैंने मेरा राइड का एक्सपीरियंस लिया। और मैं आगे मीन्स मेरा कैरियर मीन्स राइडिंग का जो पैशन है वो मैंने रखा आगे। कूल। आपने करीब 3 लाख किलोमीटर के ऊपर कवर कर लिया है, तो इतने मतलब इतना किलोमीटर आप कहाँ कहाँ राइड करके आए? प्लस आपने एलडीआर किया है, किंग ऑफ रोड्स किया है, काफी कुछ आपने सर्टिफिकेशन किया है, तो ये सब आप कैसे कर लेते हो? 3 लाख किलोमीटर है, इसमें जो 3 लाख किलोमीटर में आप देखोगे ना, 2 लाख किलोमीटर तो मेरा लोकल ही रहेगा। हाँ, यानी डे राइड वगैरह या लोकल में ऑफिस जाना है, वो सब पकड़ के मेरे डिफरेंट डिफरेंट बाइक्स पे जो डेली का रन होता है ना, उसके हिसाब से एज अप्रोक्स 3 लाख किलोमीटर हो गया है। और उसके अंदर एक्चुअल ट्रू राइड बोलेंगे तो 70 से 80,000 किलोमीटर ट्रू राइड है उसके अंदर। हम्म। हम्म। मैंने तो मैं राइड में इंडिया 5 बार गया हूँ। ओम बन्ना मैंने 5 बार विजिट किया है, राजस्थान। उसके बाद मैंने किंग ऑफ द रोड एक बार किया है, 2 बार एक बार 12 घंटे वाला भी किया है, एक बार 24 आवर्स वाला भी किया है, फुल टोटल और नॉर्मल। ओके। और इतना सारा मतलब वो रिकॉर्ड वाले राइड्स करते हो, मतलब चैलेंज वाले राइड्स करते हो, इसका मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन इन द सेंस, ऐसा मोटिवेशन तो नहीं लगा मुझे कोई कि मुझे कोई मोटिवेट कर रहा है। बट एज अ मैं ऐसे ही मैं से देख रहा था कि ये भी कोई सर्टिफिकेशन है, क्योंकि देखिए कैसे रहता है कि हर एक बंदा का अलग अलग टाइप ऑफ राइडिंग रहता है। मीन्स कोई, किसी को ऑफ रोडिंग अच्छा लगता है, किसी को मीन्स ऐसा सोलो राइड पसंद है, कोई नेशनल लेवल पे भी करता है इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में वगैरह आने के लिए। तो ये मैं मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट मैं शशिकांत दगाले ने मेरा बात होता रहता था कि शशि ने एक हम्म। बार रिकॉर्ड किया था ये फुल टोटल वाला 24 आवर्स में 1600 किलोमीटर, 1610 किलोमीटर। हम्म। तो मैंने उसको बोला था कि मुझे भी इंटरेस्टेड हूँ, कभी रहेगा
टाइम तुम्हें या तुम कभी ऑर्गेनाइज करोगे तो मुझे बताओ करके। हम्म। तो उसके नेक्स्ट ईयर में ही बापूबा रैली करके था, एक बैंगलोर हम्म। पुणे बैंगलोर एक इवेंट रहता था एवरी फेब्रुआरी। ओके। तो वो, हाँ, तो वो इवेंट मैं ज्वाइन किया था। तो हम्म। यहाँ पुणे से बैंगलोर जाने वाले और बैंगलोर से फिर रिटर्न आना था। वो हम्म। 1600 किलोमीटर करना था, 1600 से ज़्यादा ही हम्म। था, वो 1670 किलोमीटर कुछ तो भी था, 1670 हम्म। 1660 किलोमीटर था। और वैसे ही वहाँ हम्म। से बैंगलोर से पुणे आने वाले भी बंदे थे और पुणे से वापस वो रिटर्न जाएंगे बैंगलोर, ऐसा भी हम्म। था। बट हम लोग हम्म। यहाँ से जो जाने वाले थे वो हम लोग 3 ही जन थे। हम्म। पुणे पुणे से बैंगलोर, बैंगलोर से वापस पुणे आने वाले 24 आवर्स वाले। तो हाँ। वो मैंने मेरे फ्रेंड के साथ, मेरा जो एक कॉलेज का फ्रेंड था उसके साथ मैंने हम्म। हम दोनों ने वो कंप्लीट किया था। वो तभी मेरे पास हम्म। रॉयल इनफील्ड था, इलेक्ट्रा 350 सीसी। हम्म। हम्म। और वो तो मीन्स फिर शशि वो, शशि आपको फाइनली लेके गया? नहीं, शशि ने हम शशि इज अ कोऑर्डिनेटर, मीन्स शशि का उसके पहले साल में हुआ था। तो बापूबा रैली वालों ने उन्हें और का कोऑर्डिनेटर रखा था कि तुम्हें हम्म। मीन्स उनके जो बैंगलोर से जो पुणे में जो बंदे आने वाले ना उनका पूरा हम्म। मीन्स कितने बजे आया वो बंदा, क्योंकि वो रिकॉर्ड है ना, रिकॉर्ड राइड है। राइट। राइट। हाँ, तो कौन सा बंदा पूना से कितने बजे निकला है, यानी तुमने जब भी पेट्रोल भरा लिया गाड़ी में तभी से तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो जाता है करेक्ट। जर्नी का। हाँ, तो हम्म। वहाँ से जो पुणे से जो बैंगलोर के से कुछ 30 या 40 लोग थे जो हम्म। 1 बाय 1 आने वाले थे। तो उनका राइट। वो पूरा डिटेल्स पुणे में शशि को करना था। तो वो ओके। वहाँ से कोऑर्डिनेट कर रहा था, फिर वो सब उन्होंने डिटेल शीट बनाई थी कि ये XYZ बंदा ये इतने टाइम पे आ गया था, इसका ये गाड़ी था, और यहाँ से हम्म। लेफ्ट हो गया पेट्रोल भरा के ये सो एंड सो टाइम के बीच में ही निकल गया यहाँ से। मीन्स उसको कंफर्म हुआ रहता था बैंगलोर वाले को कि ये बंदा यहाँ टच होके रिटर्न गया है प्रॉपरली। तो वो एक तो बिग का गाइडेंस था, उसका कोऑर्डिनेशन था। हम्म। और वो 2 दिन वो सो भी सोया नहीं था क्योंकि उसको हम लोग को भी कोऑर्डिनेशन करना था, हम लोग कहाँ पे है, हम लोग गूगल मैप के ऊपर उसके साथ पूरा हम लोग नोटिफिकेशन में थे, लाइव में। ओके। हम्म। तो आपने जब ये बापुआ वाला राइड किया था तो आप सुरेंद्र कुमार को शायद जानते रहेंगे जो बैंगलोर से है। हाँ, कर्नाटक वाले, सुरेंद्र कर्नाटक, राइट। हाँ। तो वो भी शायद उसी राइड पे थे, but he got हाँ, lost I वो think in Pune for some reason and then he came back and joined on the ride। कुछ तो उनका स्टोरी था। नहीं, उनके उसके बारे में तो पता नहीं, बट सुरेंद्र ने के तो ही इज मीन्स मोस्ट मीन्स उन्होंने सबसे ज्यादा LDR किया है इंडिया में। ही इज द फेमस करेक्ट। पर्सन LDR। राइट। एंड उनको मैंने इंटरव्यू किया था अप्रैल में, सो यस दैट्स हाउ आई नो अबाउट हिम। JB also there na, डेफिनेटली। Jyotish name Jyotish Babu. He is the organizer ओके। for the Babu. नहीं, उनका मैंने इंटरव्यू नहीं किया है, बट या आई हैव स्पोकन टू सुरेंद्र कर्नाटका फॉर Okay. ये शशि बोलते हैं वो शशि बोल रहा हमारा है। रजनीकांत है। राइट राइट, ये तो रजनीकांत भाई। बिकॉज ये आप बोलोगे ना मैम कि आप उन्होंने ना वो कुछ KTM का किसी का एक कुछ बाइक आया था उसके, वो जैसे उन्होंने लिया वो स्टॉक गाड़ी के ऊपर उन्होंने बारिश के अंदर भी ये LDR मारा है। सिंगल बल्ब हाँ। 35 वोल्ट के बल्ब के ऊपर उन्होंने रेनी डेज उन्होंने रेन में LDR मारा है। मीन्स रजनीकांत ही है वो। और वो ऐसे नहीं कि एक्चुअली हम लोगों का कैसा पैशन है, मैं आई एम बिग फैन ऑफ रॉयल इनफील्ड। तो मेरे पास हम्म। इलेक्ट्रा है, अभी हिमालयन ली है मैंने 2 से 3 साल पहले। तो हम हम्म। लोग, हमारे पास वो वही ब्रांड की गाड़ियाँ हम लोग यूज़ करते, बट उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के ऊपर गाड़ियों के ऊपर KTM हो गया, अलग अलग गाड़ियों पे उन्होंने राइट। LDR मारा। करेक्ट। करेक्ट। तो इतना सर आपने एलडीआर मार लिया एंड ऑल दैट, आपका फेवरेट प्लेस कौन सा था? मतलब आज तक के जितना आप जितने प्लेसेस पे गए थे उनमें से आपका फेवरेट प्लेस कौन सा रहा है? ओम बन्ना टेम्पल। कोई खास बात है कि फिर वो बुलेट बाबा है इसलिए? नहीं, मैं मुझे एक्सपीरियंस है कि
वहाँ से मुझे थोड़ा आशीर्वाद भी है उनकी तरफ से, हम्म। क्योंकि हम्म। मैंने जब भी किंग ऑफ द रोड हम लोग ने करने वाले थे, तभी हम लोग ने जो रूट लिया था, भाईंदर से हम लोग स्टार्ट किए थे, मुंबई से। फिर वहाँ से हम्म। हमें जाना था, पहला स्टॉप हमें लेना था ओम बन्ना। वहाँ से दर्शन करके हमें सिरोही की वो वाले रोड से हमें ओम बन्ना करके फिर दिल्ली जाना था। ओके। बट हमारा हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया कि हम यहाँ से निकले तो सही बराबर, और हम लोग जनवरी में कर रहे थे, हम्म। 26 जनवरी को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ओके। और सुबह सुबह स्टार्ट किया था 4 बजे, तभी ठंडी थी बहुत। तो हम्म। हम लोग गुजरात गुजरात तक पहुंचे ना, तो हम लोग बोले यार 8 9 बजे 10 बजे तक हम लोग गुजरात पहुंचे थे, और वहाँ पे फॉग बहुत था और ठंडी तो बहुत ही थी। तो हम ओके। मैं और मेरा फ्रेंड बोला कि अरे यार अभी जाने दे, अभी नहीं करते, रिटर्न जाते, बहुत ठंडी है, नहीं का झेल पाएंगे। तो हम्म। फिर पेट्रोल भरे गाड़ी में, तो फिर बोले चल ना, जाते हैं ना, आगे थोड़ा कर लेते हैं, देखते हैं। फिर जैसे 11 12 बजा ना, फिर थोड़ा गर्मी स्टार्ट हो गया। तो मैं बोला ओके। चल अभी तो 11 ही बज रहे हैं ना, अपन कर लेंगे, चल निकलते हैं। तो हम लोग हम्म। करते करते फिर निकल गए आगे। और हम हम्म। लोग का मीन्स हम लोग को सिरोही लेफ्ट लेना था, बट हम लोग राइट मार के सीधा जयपुर वाला रोड पकड़ लिए। वो अच्छा। मीन्स हाँ, वो मीन्स स्पीड में निकल गए थे, तो हम लोग वो जयपुर वाला रोड मार के निकल रास्ता गए। मिला हुआ है। हाँ, तो हाईवे खाली मिला, हम लोग को पता ही नहीं चला कि हम लोग अपने को लेफ्ट लेने का था सिरोही के लिए। हम लोग सीधा अच्छा। सीधा हाँ। निकल गए। निकले तो हम्म। निकले, फिर आगे जाने के बाद उधर कुछ रास्ते का काम चल रहा था जयपुर में, तो हम्म। फिर वापस वहां पे भी शॉर्टकट मार दिए, एक हम्म। ओल्ड वाले रोड से गए। उधर हम्म। हम लोग को थोड़ा लेट हो गया, फिर वहां से फिर हम लोग सीधा निकले बाहर, अजमेर में निकले बाहर। वो एक शॉर्टकट जाता है उसमें, फिर आपको जोधपुर जाइए, जयपुर आएगा ही नहीं। तो फिर हम लोग हम्म। सीधा निकले उधर अजमेर। फिर ओके। हम लोग बोले अरे ये अपन तो उल्टा कर दिए सब। तो फिर वापस हम लोग ने स्टार्ट किए, हम लोग पेट्रोल भरा है। फिर हम्म। वहां से अजमेर से फिर हम लोग जयपुर पहुंचे। उसमें भी मेरे दोस्त की तबीयत खराब हो गई बीच में, जो मेरे साथ सोलो था। हम्म। तो वो बंदे का मुझे पता ही नहीं कि वो भी मेरे साथ है, मेरे साथ पीछे आ रहा है। मैं ओके। अपने हाँ, और एक्चुअली हम लोग टाइम से थोड़ा आगे पीछे हो गए थे, हम लोग को ज़्यादा किलोमीटर और टाइम कम हो गया था। मीन्स हम लोग के ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो गए थे, होने ही वाले थे, हम्म। मीन्स 22 23 आवर्स हो गए थे। ओके। तो वो बंदे ने गिव अप कर दिया। वो बोला कि मेरी तबीयत का थोड़ा इशू हो रहा है, तो ओके। उन मैं इधर होल्ड ले रहा हूँ जयपुर के पहले। और मुझे पता ही नहीं कि हो, मैं जयपुर भी पहुंच गया। फिर मैं अच्छा। देखा कि ये बंदा आ नहीं रहा है। तो फिर उसका मैसेज, मोबाइल में मैसेज देखा, तो पता चला कि वो बंदे ने मैसेज डाला कि मैं होटल में चेक इन हो गया करके। तो मैं अच्छा। अभी जयपुर पहुंच गया, फिर दीदी को फ़ोन किया वहां से मैंने, हम्म। वैशाली दीदी को, रात को 12 बजे उनको बोला कि अरे ऐसा ऐसा है, अभी क्या करूँ। तो बोलता है आगे देखो, ठंडी तो रहेगा, क्योंकि जिस दिन हम लोग निकले थे ना, उसी दिन साला टेम्परेचर बहुत कम था, 5 डिग्री था। अच्छा। और हाँ, और हाईवे पे, दिल्ली जयपुर दिल्ली हाईवे पे जो मैं बाइक चला रहा था, मैं 110 की स्पीड में बाइक चला रहा था। और हम्म। मेरे पास जैकेट और मेरा DG5 के सिवा कुछ मैंने पहना नहीं था। मैं लिटरली मैं बोलूँ ना, मैं गाड़ी पे सोया था। मीन्स लिटरली टैंक के ऊपर मेरा बॉडी को रख के, चेस्ट को रख के, मैं सो के गाड़ी चला रहा था 110 की स्पीड में। माय गॉड। और उसके हाँ, दैट इज उसके बाद डेंजरस। मैं हाँ, तो उसी रातों रात मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली से यू टर्न लेके फिर वापस ब्यावर ब्यावर होते हुए फिर ओम बन्ना मैंने किया। सुबह 9 बजे तक ओ। मैं हाँ, ओम बन्ना पहुंचा। अच्छा। और ओम बन्ना पहुंचने के बाद में तभी गाड़ी में मैंने ऑयल ये किया था। मेरा गाड़ी का ऑयल कम हो गया था, तो मैं तभी गाड़ी में ऑयल डाल रहा था, मीन्स इंजन ऑयल। हम्म। हम्म। तभी एक बंदा आया सामने, मीन्स वो राजस्थानी लिबास में ही था। ओके। वो बोला किधर जा रहा है, मीन्स क्या, मीन्स वो अभी पता नहीं, मीन्स मुझे तो लगता है कि वो ओम बन्ना ही थे, क्योंकि अच्छा। हाँ, मैंने उनको बोला मेरा एक राइड चालू है ऐसा ऐसा, और हाँ। मुझे 3 बजे तक है ना गुजरात पहुंचना है, कैसे भी ओके। करके। अभी मेरे पास हम्म। 6 घंटे ही है, और मुझे चार हम्म। सौ किलोमीटर काटना है। हम्म। तो वो बोला तुम डरो मत, तुम्हारे पास बुलेट है ना, तुम पहुंच जाओगे, ऐसे बोला मुझे। और है अच्छा। ना, मैं इधर ऑयल भर भर दिया मैंने। मेरा 1 लीटर ऑयल का डब्बा था मेरे पास लास्ट का बचा हुआ, वो हाँ। मैंने एक एक लीटर डाला गाड़ी में।
गाड़ी स्टार्ट किया और पीछे देखा तो वो बंदा गायब, वहां पे था ही नहीं वो बंदा। वो अच्छा। बोल रहा था कि मैं वो गाड़ी वहां से, वो एसटी आई ना, वो एसटी में से आया, तुमको देखा तो मैं इधर आया, बट वो एसटी भी वहां पे तभी थी, बाद में वो एसटी भी मीन्स गायब। गायब हो गई। हाँ गायब ओ हो गए, फिर वहां से हाँ तभी तब तक तो हो गए थे 12 24 कुछ 26 आवर्स हो गए थे, और मेरा तो ब्रेन चल नहीं रहा था, क्योंकि कंटिन्यूस इतना थंपिंग के साथ मैं बाइक चला रहा था। तो मेरा तो ब्रेन नहीं चल रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद जब मैं सांडेराव करके एक जगह आती है, वहाँ हम्म पे टोल नाका पे रुका था, मुंह हम्म धो रहा था, उतने में एक बंदा आया वापस से। हम्म हम्म। वो बोला कि सिगरेट पियोगे क्या, उसने कुछ डायरेक्ट पूछा ही नहीं, कुछ मीन्स कहाँ से क्या, वो बोला सिगरेट पियोगे क्या। अभी मुझे, मैं बोलूँ यार इतना सुबह सुबह ये बंदा आया है 10 बजे, इतने ठंडी में बोल रहा है कि, मैंने पूछा क्या तुम कौन हो, तो बोल रहा नहीं मैं भी राइडर्स को फॉलो करता हूँ, मेरे गाड़ी का सर्विस सेंटर में जाना है मुझे सर्विस करने के लिए, तो मैं आपको देखा तो रुका। तो मैं उसके पास से एक सिगरेट लिया, स्मोक किया। मैं सिगरेट फेंकने के लिए उल्टा मीन्स पीछे के साइड गया, उतने में वो बंदा गायब। मीन्स वो पता नहीं, हाँ वो पता नहीं मीन्स वो, कि उन लोग उनका रेंज है वहां तक सांडे राव तक, कि उन्होंने मुझे वापस बोला कि तू निकल जल्दी, तो मैं वैसे निकला। मेरा ब्रेन ही नहीं चल रहा था। 36 घंटा होना ही मीन्स 27 28 घंटा मेरा हो गया था उसके अंदर। 30 एक 32 घंटा तब तक मेरा, मैं सांडे राव में ही था, और मुझे वो आगे के 6 घंटे में, 30 घंटे के बाद 6 घंटे मेरे पास बचे थे, वो 6 घंटे में मुझे 36 आवर्स कंप्लीट भी करने थे। बट मैंने कर दिए, मैं मेरा हो गया, वो गुजरात तक मैं पहुंच गया। उसमें भी आगे ग्रेट। जाने के बाद 2 घंटे के बाद मेरे गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। लाइनर ओ पीछे का जो लाइनर रहता है वो गर्म होके जल गया था, वो ब्रेक ही नहीं लग रहा था। वाह, फिर भी मैंने कंप्लीट यू आर किया। लकी। हाँ। हाँ फिर भी कंप्लीट किया, बट एक ही है कि ये सब अभी वो, तभी वो मीन्स एक क्रेज था कि करना है हम्म करके। हम्म। तो यानी हुक और क्रूक बोलते हैं ना कि करना है तो करना है, तो वैसे किया, बट एक्चुअली इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन इंडियन रोड्स। ये मेरा तो है, क्योंकि मैं 2 बार बचा हूँ अकेला राइड के टाइम। मेरा मिसअप हो जाता था मैं 2 बार बचा वो राइड में, बट हाँ वो एक मेरे साथ एक है था कि मैं ओम बन्ना टेम्पल को मानता हूँ, तो मैं वो सर्कल जो मैंने कंप्लीट किया, मैं वो वहाँ पे माथा टेका और फिर आगे निकला, वो मेरे लिए था एक मेरा हाँ, पॉजिटिव साइन था। वैसे भी लोग मतलब आपका ही नहीं, काफी लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जहाँ पे वो उनको कुछ डेंजर ऐसा फील हुआ है उस रास्ते पे, तो वहां पे कोई ना कोई आके उसको उनको हेल्प करके गया हुआ है। तो आपका एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज, मतलब ये पॉसिबिलिटी है। एंड दूसरा है कि दे ऑलवेज से कि अगर आप पाली से गुजरो और ओम बना के टेम्पल के यहाँ से गुजरो, या तो टेम्पल में जाके आप पैर पड़ के निकलो, या तो वहां से जोर से, जैसे बस कार वगैरह हुआ, उन लोग जोर से हॉर्न बजा के निकलते हैं वहां से, मतलब पैर पैर पड़ने के हिसाब से जोर से वहां पे हॉर्न बजाते हैं और निकलते हैं। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं वहां से 2 3 बार गुजरी हूँ, लेकिन जब मुझे रुकना है वहां पे, मतलब अगर क्या बोलते हैं उसको, अगर मेरा नसीब में वहां पे रुकना है तब मुझे वो मंदिर दिखता है, वरना मुझे वो मंदिर दिखता नहीं। ऐसा नहीं है सच में मैं 2 बार मुझे दिखा, तीसरी बार वहीं से गई, लेकिन मुझे वो मंदिर दिखा नहीं। तो वो ऑन द वो ऐसा नैरो रोड है वैसे, और नहीं, एक स्पॉट है नैरो बीच में, नहीं, इट्स ऑन द हाईवे इटसेल्फ, एंड ऑन द काफी वैसे। ऑन द हाईवे ऑल्सो, हाँ, और बट काफी वो गर्दी थोड़ा, भी रहता है वहां पे। हाँ गर्दी रहता है वहाँ पे, आप हाँ, उसको मिस ही नहीं कर सकते, वो इजीली वही लोकेटेड है। इजीली लोकेटेड है और मिस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मुझसे मिस हुआ है। हाँ हाँ हाँ। वही बोल रहे थे। तो ये तो आपका पता नहीं बुलावा मतलब नहीं व्हाट आया रहेगा तब तक, आपका बुलावा नहीं आया होगा, क्योंकि मेरा तो उस ऐसा बुलावा आया था ना कि मैंने ट्रू वॉन्डर के लिए जब भी राइड मारा था, तभी मैं मेरा 2 बार दर्शन हो गया, एक बार जाने हाँ, के टाइम भी हो गया, एक बार आने के टाइम भी हो गया। वही बोल रही हूँ। तो मतलब कुछ तो है वहां पे जिससे वजह से मतलब इसलिए लोग मानते भी है उस जगह को।
क्योंकि उनका स्टोरी भी अ, अलग ही है कुछ। तो हाँ, आई एग्री विथ यू ऑन दैट पार्ट कि देयर इज समथिंग ओवर देयर दैट कीप्स पीपल सेफ, जो भी उस रास्ते से यस यस यस, हाँ। निकलते हैं उस उनका तरफ। उनका वो है, वहाँ पे पावर है वैसे। करेक्ट करेक्ट। तो आप अभी और कौन सा राइड करना चाहते हो? एक्चुअली हमारा शशि का और मेरा एक इंडिया बुक्स ऑफ रिकॉर्ड का राइड होने वाला था। हम लोग एक हम्म। मीन्स बड़ा राइड इन द सेंस, हम लोग को इन 5 डेज हम लोग ऑल ओवर इंडिया करने वाले थे, हाईवे टू हाईवे पूरा। 5 days में? हाँ, 5 डेज में, और सबसे ज़्यादा लोग। तो हम लोग ने वैसे एक हम्म ग्रुप भी फॉर्म किया था, बनाया था हम्म कि हम्म। ये हम लोग 15 राइडर्स जाएंगे करके। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब कोविड का वगैरह स्टार्ट हो गया 2020 में, हम्म। और फिर उसके वजह से वो नहीं हो पाया। मैं और तो कितना किलोमीटर्स प्लान किया था आपने? ये समथिंग कुछ 5700 के कितना किलोमीटर था कुछ, ऑन रिकॉर्ड ऐसा था, पूरा इंडिया। पूरा इंडिया 5,700 किलोमीटर्स, कैपिटल टू कैपिटल, ऑल स्टेट्स, हाँ, ऑल या स्टेट्स। गोल्डन ऑल स्टेट नहीं है, हम लोग, हमारा कैसे था कि मुंबई से जीक्यू? दिल्ली। हाँ, जीक्यू का बात हुआ था, क्योंकि गोल्डन का। दैट इज पॉसिबल इन 5 days, हाँ, ऑल इंडिया नहीं हो बट सकता आफ्टर हाँ 5 days। हाँ वही जीक्यू का हुआ था, ऑल इंडिया वाला, हम्म हम्म। हाईवे टू हाईवे पूरा। बट उसके अंदर भी हम लोग को रिकॉर्ड राइड करना था, हम लोग को सबसे ज़्यादा लोगों के साथ करना था। तो हम ओके। लोग ने मैं हाँ, जो एंड्योरेंस करते हैं, जो एलडीआर वगैरह जिन्होंने किया है, वैसे लोग लिए थे हम लोग ने। बट वो नहीं हो पाया क्योंकि कोविड के वजह से वो नहीं हो पाया। तो वो एक होने वाला था। ओके। हम्म। अच्छा। तो अभी देखते हैं आप फ्यूचर में कभी टाइम मिला या किसी का मीन्स, अभी तो 1-2 साल तो कुछ नहीं मीन्स, अभी कब तक हम्म, वेव रहेगा पता नहीं, तो उसके हिसाब से। होगा होगा, जरूर होगा, 100% होगा। हम बाइकर्स कभी अपना क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिविटी नहीं छोड़ते। राइट करना ही राइट। है और करेंगे। वो तो है, करना है तो करना है। हाँ। तो आपका ड्रीम राइड कौन सा है, या आपको कौन सी ऐसी मतलब कौन सी ऐसी जगह है जहां आप जिंदगी में एटलीस्ट एक बार तो भी जाना चाहते मेरा लेह लद्दाख बाकी है। आप बोलोगे यार लेह लद्दाख सब जाते हैं, तू नहीं जाके आया, अरे हो? क्योंकि नहीं, मैं मैंने ऐसा कुछ नहीं बोलती। क्योंकि मैंने जो अभी हिमालयन ली थी ना 3 साल पहले, तो मैंने यही सोचा था कि मैंने फुली लोडेड हिमालयन ली थी, BS4 जब स्टार्ट हुआ था, पहला स्लीट मॉडल ऑनलाइन बुक किया था। वो उसी के हम्म। लिए बुक किया था कि मुझे नेक्स्ट सीजन, कमिंग सीजन में ले जाना है। ओके। बट मैं जा नहीं पाया क्योंकि मुझे ऑफिस से मुझे छुट्टी नहीं मिली, और मेरा थोड़ा बजट भी ऊपर नीचे हो गया था, तो उसके वजह से हम्म। जा नहीं पाया मैं। और ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट ईयर माय डैड एक्सपायर्ड, तो ओ, उसके आई वजह एम से नहीं सॉरी। जा पाया। हाँ, और अभी लास्ट ईयर तो कोविड हो गया। तो उसमें भी चला गया, तो सीजन चला गया, अभी सब पब्लिक जा रहे हैं। बट अभी अभी कैसे जाएं अभी, तो भी प्रॉब्लम है कि जाना है, बट रिस्क है वो मीन्स, करेक्ट। आगे एंड जाने अभी के इस बाद या साल कुछ होने काफी के। हाँ लैंडस्लाइड्स और क्लाउड बर्स्ट हाँ, एंड क्लाउड फ्लैश बस्ट फ्लड वगैरह बहुत हुआ है, और सारा हुआ कभी है। कुछ, हाँ कभी कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए मीन्स, अपन यहाँ से तो निकले सही से, बट 2 या 3 दिन के बाद अपने अफेक्टेड हो गए तो क्या करोगे? फिर करेक्ट अपने साथ जो रहेगा उसका भी प्रॉब्लम, करेक्ट। या उसको, या अपने एब्सोल्युटली साथ जो रहेगा उसको कुछ हुआ या कुछ भी हो गया, तो अपने को मीन्स ये टाइम को हेल्प मिलना वो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। करेक्ट। क्योंकि बहुत एब्सोल्युटली। सारे राइडर्स अभी राइड स्टॉप कर दिए, हाईवे टू हाईवे भी जो रहते थे वो लोग भी ज़्यादा मीन्स, अभी सेफ्टी इज फर्स्ट, लाइफ है, जान है एब्सोल्युटली। तो जान है। आज नहीं तो एब्सोल्युटली। क्या, 10 साल बात करेंगे यार, उसमें क्या है। हाँ, तो इसलिए पूछा ना कि आप लाइफ में ऐसे कौन एक बार तो भी जाए, ऐसा कौन सी जगह है, इसीलिए पूछा। नहीं, मुझे अंडमान भी जाना है, बट नॉट ऑन बाइक। देखते हैं, सेकेंड हनीमून के लिए जाऊंगा अंडमान निकोबार वहां आइलैंड। जाके आप ब्रेक ले सकते हो, हाँ, राइड ब्रेक। करने। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आप ग्रुप में ज्यादा राइड करते हो कि फिर आप सोलो भी करते हो? नहीं, मेरा खुद का ग्रुप है ना, क्लब है हमारा,
रॉयल राइडर्स अच्छा। मुंबई करके। हाँ, ओके। तो मैंने फाउंड किया था। हो गए हम्म। उसको भी कुछ 5 साल हो गए, 2015 में फाउंड किया था। ओ नाइस। हाँ। तो वन तो मोर थिंग और मेरा एक फोरम भी चलता है, इंडिया आरी हम्म। ओनर्स करके, व्हाट्सएप ओके। पे। हाँ। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने चालू किया 2014 में। अच्छा। हाँ। तो मैं वो भी एक क्योंकि मैं तो आ रही हूँ नहीं। नहीं, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, हमारा पेज वहाँ पे भी है इंस्टाग्राम पे। डेफिनेटली मैं डेफिनेटली। हाँ, तो वो भी फैन पेज की तरह हमने बना के रखा है। टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है इंडिया आरी ओनर्स का, आप ओके। वहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। ग्रेट ग्रेट। तो ये इसमें कितने लोग हैं आपके ग्रुप में? मेरे ग्रुप में मीन्स अभी 8 जन हैं, मीन्स 8 राइडर्स। ओके। एंड आप लोग 8 लोग, 8 के 8 लोग हमेशा घूमते हो कि फिर उसमें स्प्लिट्स होते हैं हाँ, या? मोस्ट ऑफ द लोग, हाँ, कभी कभी कैसे होता है किसी को फैमिली के वजह से नहीं निकलना पड़ता। अभी हम लोग ने वैसे राइड्स कम कर दिए हैं, क्योंकि ड्यू टू कोविड ना, हम लोग हम्म। मीन्स हर एक के किसी ना किसी के फैमिली में कुछ ना कुछ इशू होते ही है। ट्रू। या करेक्ट। हाँ, तो उस हिसाब से हम लोग ने भी राइड 2 साल से, तो मीन्स अभी ये 1.5 साल में तो कुछ किया नहीं है। हम्म। हाँ, बट हम लोग ने बोल के रखा कि जिसका मन हो वो दे कैन ज्वाइन अनदर ग्रुप और एनी डे राइड। वैसे तो चालू रहता है, शशि का तो चालू ही रहता है, तो मैं शशि के साथ ज्वाइन हो जाता हूँ। ओके। एक्चुअली मेरा, हाँ, तो सेकंड अनलॉक में तो मैं शशि के साथ 2 राइड किया था। हम्म। बाद आफ्टर दैट मार्च में मुझे खुद को कोविड हुआ था, तो फिर मैं स्टॉप कर दिया। मैं बोला भाई, अभी थोड़ा लाइफ भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो उसी के हिसाब से करेक्ट। अभी सब स्टॉप है थोड़ा। अभी आप फुल्ली रिकवर्ड हो चुके हो? आई हाँ, होप, फुली। आई मीन बैक टू गुड हाँ, हेल्थ। यस यस, बैक टू गुड हेल्थ एंड पार्शियली मेरा ये भी हो गया है, इंजेक्शन भी हो गया है कोविड ओ का। नाइस। एक डोज भी हो वेरी गया, गुड अभी वेरी गुड। नेक्स्ट डोज होगा मेरा नेक्स्ट मंथ में, ये मंथ एंड में दैट्स नाइस। होगा। दैट्स ग्रेट, दैट्स वेरी वेरी गुड टू नो। क्योंकि काफी लोगों को साइड इफेक्ट्स हुआ है या मतलब हाँ, कि यस, उसके बाद वो में 2 दिन वो। थोड़ा रहता है, बाद में अपने हेल्थ के हिसाब से अपने को मैनेज करना पड़ता है। मैनेज हो जाता है वैसे तो। राइट राइट। तो आप अभी फिर मतलब अभी आपने बोला आपको कोविड हो गया, यू हैव टेकन अ बैक सीट फॉर राइडिंग एंड ऑल दैट। तो नहीं, घर बिकॉज बैठे। आई एम टेकिंग सेफ्टी फॉर माई चाइल्ड एक्चुअली। क्योंकि एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ, यस, क्योंकि अभी मैं तो अकेला हूँ, मैं तो चला जाऊंगा डे राइड के लिए, आ जाऊंगा शाम को, बट मेरे साथ कुछ वायरस आया कपड़े को में से या कुछ भी, तो मेरे फैमिली और मेरे चाइल्ड के ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसका। करेक्ट राइट, तो एब्सोल्युटली। वो प्रिकॉशन लेके मैं ज़्यादा करके घर से बाहर निकलता भी नहीं। और वैसे भी मेरा अभी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, तो फिर घर से ही काम होता है। तो वो ग्रेट ग्रेट। तो वो राइड तो चलती रहेगी, लाइफ है तो राइड चलती रहेगी, नए नए दोस्त मिलेंगे। जैसे करेक्ट। आपने 2 दिन पहले फ़ोन किया था मुझे, आपसे मेरा मीन्स मैं आपको पहचानता हूँ, बट एकदम से आपने मुझे बोला कि कल इंटरव्यू है। तो मैं भी थोड़ा अच्छे में कि मैं बोला, अरे यार, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं थोड़ी इतना बड़ा कोई राइडर हूँ। हाँ, नहीं, बड़ा छोटा मेरे लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, एज लॉन्ग एज यू हैव अ स्टोरी टू से एक्सपीरियंस। एंड यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जरूरी नहीं कि आपने एक राइड मारा या 10 राइड मारा या 100 राइड मारा। जरूरी मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि आप राइडिंग को कितना इम्पोर्टेंस देते हो, सेफ्टी को कितना इम्पोर्टेंस देते हो, यस, आप अपना। इम्पोर्टेंट विथ सेफ्टी, सेफ्टी इज करेक्ट फर्स्ट। करेक्ट। हेलमेट, शूज कंपलसरी है, होना ही चाहिए। ग्लोव्स होगा, करेक्ट। हाथ में हैंड ग्लोव्स बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक 20 की स्पीड से भी गिरा था। और मेरा हाथ फट गया था। ओह माय विदाउट गॉड। मेरे हाथ में, हाँ, ग्लोव्स नहीं था, फिर भी मेरे में इतनी मस्ती थी ना, फिर भी वो हाथ फटा है मेरा बीच में से, फिर भी मैं ओहो। काम पे बाइक पे लेके जाता था। क्योंकि हाथ तो इधर फटने के बाद इधर टाका नहीं लगता, वो हम्म। उसको सूखेगा, उसके बाद ही वो स्किन फील अटैच होगा। होगा।
हाँ हाँ। हील होगा। तो फिर भी अभी पता है ना, वो बाइकर है तो फिर वो छोड़ेगा ही नहीं गाड़ी। वो तो ट्रेन से घूमेगा ही नहीं, बाइक से ही जाएगा जहाँ जाना है, वैसे। एब्सोल्युटली। वैसे भी मैं इसलिए लोगों को बोलती हूँ कि मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन एट द स्लोएस्ट ऑफ स्पीड, क्योंकि एंड उसमें ज्यादा लगता है क्योंकि हम स्लो रहते हैं, मतलब स्लो स्पीड में गाड़ी से बाहर भी मतलब जंप भी नहीं कर सकते हैं, गाड़ी को छोड़ भी नहीं सकते हैं। एंड गाड़ी अगर गिरा तो वो अपने अपने ऊपर ही गिरता है। तो उसको मतलब वो बॉडी से अलग नहीं होता, आप कुछ भी कर लो बॉडी से उतना जल्दी अलग नहीं होता, फिर वो कोई भी तरह हाँ का बाइक खींच हो लेते हैं, तो। कभी कुछ क्लोथ वगैरह अटक गया अपना बाइक में तो वो हाँ, अपने को खींच के लेके जाता है करेक्ट। एंड ये बाइक। स्लो स्पीड में ज्यादा होता है, फास्ट स्पीड में यस। आप गाड़ी से जंप भी कर सकते हो, गाड़ी को छोड़ छोड़ भी दिया अगर आपने तो आप वो मोमेंटम में आपका बॉडी फेंक जाएगा दूर। लेकिन इसमें नहीं होता, स्लो स्पीड में थोड़ा डेंजर ज्यादा होता है जब गिरते हैं तब। वैसे मेरे भगवान मेरे साथ रहते हैं तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, मीन्स मेरे और गॉड होना है भी नहीं, मेरे होनी भी नहीं छत्रपति चाहिए। छत्रपति शिव राय मेरे साथ रहते हैं। अरे वाह। ये मेरे चेस्ट पे रहते ही है। जब भी मैं लॉन्ग ओके। राइड वगैरह जो भी करता हूँ तो ये मुझे मीन्स सपोर्ट करते हैं। ऑसम तो ऑसम। तो ये जब भी रहेंगे मेरे साथ तो मुझे मीन्स ऐसा कुछ मीन्स रात के टाइम पे मैं 2 बजे यहाँ से रत्नागिरी गया हूँ मैं अकेला सिंगल सीट। ओह ऐसे नाइस। 4 या 5 बार मैं गया हूँ सिंगल सीट अकेला हिमालयन ओह पे। हाँ ग्रेट बट ग्रेट। मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मैंने कुछ गलत किया, देख देख लिया या मुझे किस मीन्स किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मुझे कुछ। ग्रेट। हमारे यहाँ मतलब मेरा दोस्त अभी आई एम नॉट श्योर अभी भी है क्या शो पे, बट ऑडियंस में था, ललित वर्मा। ही इज अ वेरी बिग फैन ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो उनको वो एंड वो बहुत सारा ट्रैकिंग वैकिंग भी करता है, फोर्ट्स वगैरह जाता है, तो उसको ये सामने अगर हिस्ट्री करके बोलोगे तो पूरा मतलब शिवाजी का ही सब स्टोरी सुनाएगा, संभाजी का स्टोरी सुनाएगा सब। हाँ इतना एक्चुअली बड़ा फैन है। ये जो बैच है ना मुझे जो मिला है ना, ये भी एक मेरा फ्रेंड है ट्रैकर। मेरे पुराने ऑफिस में एक बंदा था, वो एक हम्म। ट्रैकिंग का ग्रुप बना था उनका। मीन्स अच्छा। दे ऑल आर फॉलोअर ऑफ शिवाजी महाराज और संभाजी राजे। ओके। तो हाँ तो वो ये बैच उनके ना शर्ट पे रहता ही था। जो भी उन लोग के हम्म। ग्रुप में रहता था ना, वो ऑफिस में आने के टाइम में उनके वो मीन्स शर्ट पे रहता ही था। तो मैंने बोला यार मुझे भी चाहिए। तो बोलता अच्छा। है कि ये तुमको अर्न करना पड़ेगा, तुमको एक तो हम्म। ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मैं तुमको खुद आके दूं, या हम्म। तुमको हमारे साथ ट्रैकिंग पे चलना पड़ेगा। तो ओके। उसके बाद जब मैंने एलडीआर मारा था 24 आवर्स का, पुणे बेंगलोर पुणे, तभी वो बंदे ने हम्म। मुझे मेरा स्टोरी देखा था फेसबुक पे, तभी वो बंदा खुद ऑफिस में आके मुझे देख के गया था। ओह नाइस, सो यू अर्नड इट। यस। ग्रेट ग्रेट। ऑसम। तो आप हमारे ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे? ऑडियंस को मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि लाइफ एक ही बार आती है, उसे जियो अच्छे से, बट विद सेफ्टी। राइड करेक्ट। करो सेफ्टी में करो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करने का। 7,000 आरपीएम के ऊपर गाड़ी चलाने में बहुत मजा आता है, बट आप 4,000 के आरपीएम पे भी गाड़ी चलाओगे और सेफ्टी से करोगे, नेचर के साथ चलोगे और आपके हेल्थ के साथ चलोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। अभी वो एब्सोल्युटली। मैंने शशिकांत वगैरह ने एलडीआर किया है, और एलडीआर के बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने हम्म। एलडीआर किया है इंडिया में। ओके। बट थोड़े लोग क्या बोलते हैं कि ये लोग पागल है, ये दे आर रैन मीन्स अगेंस्ट टाइम, ये लोग करना चाहते हैं। हम्म। बट ये जो मैंने किया था ना, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इसके ऊपर है ना बहुत मेहनत किया है, मीन्स मैंने बहुत प्रैक्टिस की है खुद में हम्म। कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मैंने 350 सीसी पे किया। 350 सीसी का हम्म। आपको तो पता है कि टॉर्क उसका 19 19 bhp है।
तो वो हम्म। ज़्यादा 110 के ऊपर जाएगी नहीं, तो उसके लिए मैंने उसके अंदर 500 के पार्ट्स डाले थे, क्लच प्लेट, अच्छा। बाद में हाँ मैंने स्पार्क प्लग चेंज किया, पावर वाला स्पार्क प्लग डाला, हेडलैम्प्स भी बहुत पावरफुल लगाए कि रात में मेरा रात का ड्राइविंग बहुत अच्छा है, तो मैंने हम्म। उसके लिए फिर बड़े हेडलैम्प लगाए थे, 500 हम्म। सीसी की चेन किट डाली थी, तो मेरी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा बूस्ट हो गई थी, तो उसके वजह ओके। से मैं कर पाया। मुझे पब्लिक ने बोला तू किंग ऑफ द रोड नहीं मारेगा ये 350 सीसी पे, मैं बेट बेट मारता हूँ, मैं खुद किया हूँ, केटीएम पे किया हूँ, तू नहीं कर सकता, बट मैंने किया। 500 सीसी पे कर सकता है बंदा, बट 350 पे करना बहुत मुश्किल है एक्चुअली। एक हम्म। बंदा है पुणे में, उन्होंने तो कुछ सीरी 100 पे किया है, कुछ हीरो होंडा वाले मोटरसाइकिल पे किया है उन्होंने। यस यस, देवेंद्र, आई फॉरगॉट हिज नेम, मैंने उनका भी हाँ इंटरव्यू किया है। हाँ, मैं भी अ, उनका नाम बोल रहा या देवेंद्र मैं या तो एक्सेप्ट करता हूँ देव, कि हाँ, देवजीत मैं ये साहा। हाँ देवजीत सर, राइट राइट। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि ये जो है राइड जो मैं करता हूँ इंश्योरेंस वाली, वो है मीन्स डेंजरस राइट, दैट इज डेंजरस फर्स्ट। तो आपकी कैपेबिलिटी जो भी है उसके हिसाब से कीजिए, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करने का, क्योंकि अपने यहाँ पे यूएस या दुबई के जैसे रोड नहीं है कि आप एक बार निकल गए तो आप निकल गए, बीच में कैटल वगैरह कभी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो लोग कभी रुकते नहीं है बीच में आ गए तो। तो राइड विद सेफ्टी इज माय मोटो। ग्रेट ग्रेट, आपने सही कहा। मतलब कुछ भी हो, सेफ्टी फर्स्ट, एंड जिंदगी एक ही बार मिलती है तो उसको खुशी से जियो, एंड सेफ रहोगे तो खुशी से ज्यादा दिन करेक्ट। एंजॉय कर सकते हैं, वरना सेफ्टी नहीं देखोगे तो कुछ नहीं नहीं हो होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। यू मे एंड अप हैविंग अ बैड डे और बैड लाइफ सकता। अहेड, मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जाएगा उसके बाद। तो सेफ्टी फर्स्ट फॉर श्योर, एंड यस, नो ओवर कॉन्फिडेंस। आपका जो लिमिट है उसको पार मत करो अननेसेसरीली। नहीं क्रॉस, नेसेसरी क्रॉस करके कुछ नहीं होने वाला है, 7000 आरपीएम के ऊपर आप जाओगे, आप गाड़ी कंट्रोल कर सकते हो, कोई अचानक में हाँ, बीच में आ गया ब्रेकिंग कर सकते हो। एग्जैक्टली, मतलब वही बोल रही हूँ कि if you're overconfident you can't achieve something, so just be confident and know your limitation and the vehicle's limitation before you go ahead and do something. बिकॉज यू आर ऑन रोड ना, रोड पे कुछ भी हो Absolutely, सकता है। कुछ यस। भी हो सकता है। आप भले सेफ हो, दूसरे सेफ हो, सेफ रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। या- हाँ मेरे साथ हुआ है ना ऐसा, राइडर में जाने के टाइम मैं चला रहा था, क्लब के साथ ही जा रहा हाँ। हूँ, और ओके। अचानक में सामने से बस आ गई, ओ। मीन्स सेम रोड पे यू हम्म। टर्न मार दिया बस ने, तो मैंने हाँ। सडनली ब्रेक मार दिया, मेरे पीछे से आके मेरे ही बंदे ने मुझे डैश कर और दिया। ओ। बट अच्छा हुआ कि गिरे नहीं, हैंडल वगैरह छूट गया था, बैक में झटका हम्म। लगा था, बट गिरे नहीं हाँ। हम लोग। ये था कि गुड। गिरते तो वो ट्रिप ट्रिप का तो सत्यानाश है, नहीं समझ जाने का, ट्रिप खत्म हो गई। एब्सोल्युटली। I can imagine that, and I really don't want to imagine that, क्योंकि वो हालत बहुत खराब होता है, एंड स्पेशली बस या ट्रक जो आगे या पीछे रहता है, अगर आपका गाड़ी स्किड कर गया और आपको भी लेके चला गया तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बैड शो। आई डोंट थिंक एनी वन ऑफ अस वुड वांट दैट एवर, डेफिनेटली। तो किरण जी, आपसे बात So करके बहुत खुशी this हुई। these are some of the group। ओ नाइस, ग्रेट ग्रेट, आपने बहुत अच्छे से सजा के रखा हुआ है। हाँ ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हूँ। अच्छा, मुझे देखना नहीं करता। वन मोर ऑसम। थिंग, एक मैंने वॉल बनाया है मेरे घर पे, हाँ हाँ। हाँ। यहाँ पे मैंने मेरे फोटोज वगैरह यहाँ पे बनाए हैं। आई वॉज जस्ट ये शोइंग माई मॉम योर स्क्रीन। ओके। मेरी मॉम को ये बहुत अच्छा लगता है। ये तो मेरा किंग ऑफ द रोड का सर्टिफिकेट लगा के रखा है यहाँ ओ नाइस, ग्रेट, पे, ये मेरे फोटोज वगैरह। ऑसम ये ऑसम। ये ट्रू वंडर का पूरा वेब पेज का प्रिंट है। अच्छा, ग्रेट ग्रेट।
मेरी मॉम को भी बाइक्स बहुत अच्छे लगते हैं। उनको मेरे साथ बाइक राइड पे आने को भी अच्छा लगता है। तो इन सिटी में कभी जाती तो मम्मी को भी लेके जाती। हाँ, गुड गुड। अच्छा, मेरी वाइफ तो मेरे साथ पीछे रहती है एवरी टाइम बट अभी तो क्या है, अभी बेबी है ना, तो उसके वजह से वो तो अभी मीन्स अभी तो लॉकडाउन से तो घर पे ही है। तो आपकी तो बेटी को हम हाय बोल सकते हैं? हाँ, श्योर श्योर है, शी इज देयर ओनली, शी इज ऑल्सो एक्साइटेड। ओह कम, वाओ, लेट ये देन कह आई रहा कैन से हाय टू हर। हाय, हाय करा, हाय करा। इज सो क्यूट। My mom is saying she's very chubby and nice. हाँ, यस। अभी तो And शांत है, जब भी बाद में पता चलेगा थोड़ी टाइम के बाद। नए लोगों को देख के शांत होती है, बाद में तो फिर उसका स्टार्ट रहता है। obviously, I mean, कोई भी अनजान से इतना जल्दी से घुल मिल नहीं जाते। But she is very cute. God bless her. थैंक यू। उसका वीडियो मैंने डाला है इंस्टाग्राम पे, देख लेना, मेरे इस पेज पे है Def- उसका। 13 मंथ्स की Definitely. है बट वेरी जीनियर, ये एकदम जीनियस है What's her एकदम। name? कायरा, KAIRA। Oh, nice name. Beautiful name. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ माय नेम एंड माय वाइफ नेम। What's your wife's name? कस्तूरी। Kasturi. Oh, हाँ, nice. तो के उनका भी ए अच्छा है। फ्रॉम कस्त हाँ, KA फ्रॉम KA एंड IRA फ्रॉम माय नेम। Nice, nice. Awesome, awesome. Beautiful name. Kyra is a beautiful name. यस, थैंक यू। So, सो एक्चुअली Kiran, I आई वाज नर्वस कि मैं इंटरव्यू वगैरह मीन्स मैंने कभी सेशन किया नहीं था, अटेम्प्ट नहीं किया है। तो मैं थोड़ा मीन्स so नर्वस था मीन्स। और पहले ही था ये कि मीन्स मैं ज्वाइन करूँ तो किस क्राइटेरिया पे करूँ, ये मेरे मन में था कि मैं कर mhm. सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है बट मैं ज़्यादा करके यूट्यूब चैनल मीन्स इतना ये नहीं हूँ, टॉकेटिव नहीं हूँ मीन्स। Okay. तो अब आपको कैसा लग रहा है? अभी बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि आज तो यूट्यूब का एक वीडियो बना दिया मैंने। तो आपका नर्वसनेस पूरा भाग गया अभी? माय फ्रेंड शिवम आल्सो ज्वाइन। Yeah, हाय he हाय just हाय joined. शिवम। हाँ, हाय शिवम। But he's a little late because we are going to end our show another 2 minutes. But यस 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 even Abhishek said hi to you and मतलब यस यस। काफी पहले उन्होंने ज्वाइन किया हाँ था। हाँ आई हाँ। कुडंट एक्नॉलेज क्योंकि आपका स्टोरी सुन रही थी तो काफी इंटरेस्टिंग था। तो मैंने आज किसी का भी क्वेश्चंस लिया नहीं है, किसी का भी कमेंट्स ज्यादा लिया नहीं है। So ओके। sorry for that to the audience, but yeah, your story was pretty capturing or attention gaining So था। one more thing, congratulations because we India proudly won first gold Yes, this Olympics yes, today. yes. So I just saw that. uh, That's indeed a proud moment for us, yes, uh, for us. with all the bronze and silver, and of course, उनका मेहनत भी काफी अच्छा रहा। And I think this time India has played well in the Olympics. Even if it is bronze that they have won most, uh, it's definitely a beautiful one. Hmm. So yeah, all the best to all the Olympiads who are playing there for us, for our country. So, Kiran, I hope you enjoyed talking to us as we enjoyed listening to your stories. And Hmm. आपका जो भी nervousness था, I hope सब दूर हो गया अभी. And now you can do more interviews and be free and more confident about नहीं, आजकल तो क्या अभी कैसे चल रहा है मालूम है, अभी वर्क फ्रॉम होम है ना, तो कहीं पे भी इंटरव्यू देना होगा ना क्या यानी जॉब के लिए भी इंटरव्यू देना रहेगा ना, तो भी अपने को है ना ऑनलाइन जाके देना है। एग्जैक्टली। तो तो अभी आपको हाँ एक्सपीरियंस हो गया। हाँ,
पहला क्वेश्चन तो आपने वही लिया एचआर वाला, तो अभी पता चल गया कैसा देना है। तो थोड़ा ब्रशअप हो गया ये, 4-5 साल से कुछ किया नहीं था इंटरव्यू भी, तो कहीं देना रहेगा तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा हो गया brush up। See, then you should say a big thank you to me for that. मिलते हैं फिर कभी राइड पे, या कभी, Absolutely. हाँ, या कभी चाय पे टाइम मिलेंगे रहेगा। पहले। हम्म। चाय पे। अभी राइड का तो पता नहीं, चाय पे मिल सकते हैं हम लोग। ओके, नहीं कैसे भी डेस्टिनी है ना, बोल नहीं सकता, कभी भी कोई भी मिल जाता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जैसे आज सो आई ट्रेन पीपल टू राइड मोटरसाइकिल्स, राइट? तो यहाँ पे माइंड माइंड स्पेस में पीछे सिखाती हूँ, वहाँ पे बैक रोड। तो आज हम्म। मैं करीब 2014 से लेके अभी तक 7 साल, तो हम्म। 7 साल के बाद आज मैं मेरे ऑफिस कलीग से मिली, जिनसे हम ओ। मतलब वो मेरे टीम में हम लोग साथ में काम करते थे। उसके बाद मेरा टीम डिफरेंट हो गया था, मैं मूव आउट हो गई थी उस टीम से। एंड आज हम्म। 7 साल के बाद मैं जब वहां पे सिखा रही थी, तो ये कार लेके गया एंड उसने मुझे बाइक पे देखा, मतलब मैंने हेलमेट वेलमेट भी पहना था, बट वो पहचान गया मुझे। एंड हम्म। गाड़ी आगे रुका के फिर फोन किया कंफर्म करने के लिए कि ये मैं ही हूँ। और फिर रिटर्न आके वो मेरे को मिल के गया। So yeah, you never know where the destiny is, where the fate is. राइट। जब मिलना है तब मिल लेंगे, और ऐसे ही आपको चलते मैं चलते बोलना मिलेंगे। भूल गया, आपको एक हाँ, बात बोलना भूल गया कि जो मैंने हिमालयन ली है ना, उसका नंबर भी मैंने 777 3 लिया है। ओ अभी नाइस। 777 क्या है, पता है आपको? ना, आपको ही बताना पड़ेगा। ये आपका ओम ओम मन्ना का नंबर? ओम मन्ना का नंबर है। यस, ओम मन्ना जी आई जी गेस का इट नंबर करेक्ट, आई गेस इट करेक्ट। है। तो मेरा ऑसम। मेरा फ्रेंड ही शोरूम में है, मैं वो बोलते हैं नहीं ये नंबर तो स्पेशल नंबर है, इसके लिए ज़्यादा पैसे लगे, मतलब ले पैसा ले, बट मुझे यही नंबर चाहिए भाई। तो बाद में मैंने उसको बोला कि ये नंबर है ना, गूगल पे सिर्फ डालना, फिर उसका मीन्स क्या है वो पता चल जाएगा तुझे स्टोरी। फिर उसको पता चला कि अच्छा। ऐसा भी टेम्पल है इंडिया में, ओके। जहाँ बाइक की पूजा होती है। बाइक की पूजा होती है, करेक्ट, हम्म। एब्सोल्युटली। So yes, thank you very much, Kiran, once again. Indeed, had a lovely session. One of our one of the person in the audience, biker broadcast करके हैं, उनका खुद का पॉडकास्ट है। So he ओके। loved your Om Bana wala story. He just messaged me, and even he did message here also saying that it's an excellent story. He loved it. So yes, thank you very much for sharing that. And yes, you have a lovely weekend. कल संडे है, ऐश करो, मजे करो। एंड हाँ, कल आई कल विल तो सी लास्ट यू। डे है ना, गटारी है कल। उसके अरे बाद हाँ, श्रावण कल चालू होने वाला गटारी है, उसके बाद श्रावण हो है। जाएगा। हाँ, चलो कल गटारी श्रावण मनाओ स्टार्ट आप, होने छुट्टी वाला से। है। एंड उसके बाद श्रावण मनाओ पूरा महीना, एंजॉय करो, हैव फन। Thanks to you, Shilpa, and thanks to all viewers. That's it for my side. And be safe. थैंक यू। Ride with responsibility. Absolutely, absolutely. Ride responsibly, be responsible, be a good citizen, and take care and be. Thank you, Kiran, and good night. Take care. Bye. Same. Bye. So, guys, that was Kiran Sawant for y'all. I hope y'all enjoyed listening to his story. He had a lovely story to say about his ride to Om Banna and his experience. And सच में ऐसा experiences होता है, ये मैंने भी सुना है. And like I said, you know, it was once with me also. जो जो मंदिर को हम मिस ही नहीं कर सकते, उसको मैं मिस कर गई थी। एंड उस टाइम पे मैं काफी स्लो भी चला रही थी कि मुझे वहां पे रुकना है, लेकिन फिर भी मैं मिस कर गई। सो यस, दीज थिंग्स हैपन। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन ऑन द रोड व्हेन यू आर ट्रैवलिंग. So yes, if you have a story you want to share with us, do message us on Roaring Cycles and we shall schedule your interview. And otherwise, yes, we do have someone else who will be sharing their story on Wednesday at 8 p.m. Tomorrow, please do not forget to log into Zoom to attend a safety session at 5 p.m. The details are there on our Instagram ID and also on Instagram ID Let's Ride. Do follow us on Let's Ride as well.
एंड जरूर ज्वाइन करना, सेफ्टी सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So yes, be there. I will see you all on Wednesday at 8 p.m. As always, take care. Bye bye. Good night. Have a lovely Sunday. Have a lovely weekend and the rest of the week. कल गटारी है, ऐश करो. Take care and bye bye. Good night.